So, good afternoon to all. So, welcome back to the sessions of the Companies Act 2013. Till the time we have completed almost 65 sections, 1 to 65, and it's a long break. And after a long break, we are having the session. So, the part C, it is a corporate law constituting 40%, 40 marks के आसपास का रहता है. So, in that case, we have completed section number 1 to 65. So the Companies Act 2013, how many sections are there? 70. अच्छा, कितने शेड्यूल्स है? 7. और कितने चैप्टर्स है? 29 chapters. We also discuss section number 2, basically deals with the definition part. Section 3 से लेके 22, that covers under the chapter number 3, related to the incorporations. Then section number 23 to 42 ending with the private placement. Then the 43 onwards that we discuss about the share capital. Fine. Now, I think we already completed the provisions related to the bonus shares. We also discuss about the right shares, alterations. Now, today, I think till 71 sections, I think material available with you is till 71. Fine. 71 sections available hai, barabar? So probably today we'll try to wrap up these entire 71 sections in this session. So, and the next material, it will be in the Q&A form, as you have mentioned, and you demanded, that is in the Q&A form, question and answer. Fine. So let us start with the reduction of the share capital, section number 66. The question that will be asked in terms of reduction, like discuss the provisions related to the reduction of share capital under section 66, or discuss the provisions for ways of alterations or the reduction of the share capital. So, as per section number 66, the reduction of the share capital, it has to be confirmed by the tribunal. So, in very short and simple language, it is confirmed by the tribunal. Which resolutions to be passed? Special resolution. और जब भी आप शेयर कैपिटल रिड्यूस करते हो, उसका मतलब हुआ अल्टरेशंस. You might be knowing the definition of alteration. AE, addition, omission, and subtraction. AOS. So it is a special and altered with the MOA. Altered the MOA. If you go with the altered of the MOA, which section is to be applicable? 13. 4 is for the MOA. But the 13 and 14 is a couple section. That 13 is for alteration of the MOA. Okay. Which requires which resolution? Special resolution. A company limited by shares or a limited by guarantee having a share capital can go with the reduction of the share capital. Ways for the alteration, that is in the reduction, section 66(1). The first one is to extinguish or to reduce the liability in respect of the share capital not paid up. जो शेयर्स पेड अप नहीं है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए पेड अप नहीं है, तो 2 रुपए मंगवाएंगे ही नहीं. That's how you are reducing it out. I hope you understand. So 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मंगवा लिया है, अभी तक पेड अप कितना बाकी है? 2, नॉट पेड है, तो हम लोग उसको मंगवाएंगे ही नहीं. कॉल विल एक्सटिंग्विश. ठीक है. कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट or unrepresented by the available assets. Or third one, pay off any paid up share capital which is in the excess of wants of company. सर ज्यादा है, हम एक काम करते हैं, उसको वापस पे कर देते हैं. ठीक है. So that's how. For example, 100 rupees मंगवाया है, I think we need only 75. I'm just giving example. So we'll repay it off 25 rupees and reduce our capital to the 75 as a fully paid up. 100 रुपए मंगवाए, आ भी गए, अभी मैं एक काम करता हूं, 25 रुपए दे ही देता हूं, जरूरत नहीं है. ठीक है. सो 25 में वापस कर दूंगा, आई एम रिड्यूसिंग विद दैट 25% एंड कंसीडर एज अ फुल्ली पेड 75. समझ में आई बात? दिस इज वन ऑफ द रिडक्शन. सो 66(1) इट स्पीक्स अबाउट no such reduction shall be made if the company is in arrears in the repayment of a deposit accepted. उसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि if you want to go for the reduction of the shares, you have to comply with the provisions that there should not be any arrears in the repayment of any
डिपॉजिट्स में कोई रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स में कोई भी एरियर्स होना चाहिए नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट। चलो अभी इश्यू ऑफ अ नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल, issue of a notice by the tribunal to central government, ROC and SEBI. SEBI कब आएगी? If the shares are listed. And director and the creditors of the company. आपका रिडक्शन कंफर्म कौन कर रहा है? आपका रिडक्शन कंफर्म कौन कर रहा है? ट्रिब्यूनल। तो फर्स्ट लाइन, इट इज कंफर्म बाय द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल ही सबको इन्फॉर्म करेगी कि भाई नाउ आई एम अलाउइंग दिस कंपनी गो फॉर द रिडक्शन। तो ट्रिब्यूनल फिर इन्फॉर्म करेगा, राइटिंग नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, सेबी को, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। If where no representation has been received from the CG, ROC or the SEBI and the creditors within a said period, then it shall be presumed that they have no objection to the reduction. तो ट्रिब्यूनल ने किसको भेजा था नोटिस कि भाई हम लोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, सेबी लिस्टेड है तो सेबी को भेजा था, क्रेडिटर्स को भी भेजा था क्योंकि उनके पैसे इन्वॉल्व होते हैं। क्रेडिटर्स माने ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, दे लैंड मनी टू द कंपनी, ठीक है। तो उनको भी भेजा था कि भाई दे आर रिड्यूसिंग, यू हैव एनी ऑब्जेक्शन तो आप बोल दो। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अप्रोचिंग कि 100 रुपए लिया हुआ था और 25 वापस कर रहा हूं, तो क्रेडिटर्स भी तो पहले सोचेगा। क्रेडिटर्स क्या सोचेगा? पहले हमें दो ना भाई। तो यू नीड टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द ऑब्जेक्शंस इफ यू हैव एनी, तो आपको उनके पास से ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं है, इफ दे आर नॉट गेटिंग एनी ऑब्जेक्शंस, देन इट इज प्रीज्यूम कि उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द रिप्रेजेंटेशन इज स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड, नॉट एडमिटिंग इन अ फुल। स्टैट्यूटरी का मतलब कंपलसरी, माने एज पर द एक्ट रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, चलो टू कंफर्म द रिडक्शन सब्जेक्ट टू, माने सबसे पहले ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा कि भाई नाउ आई एम कंफर्मिंग दिस रिडक्शन subject to satisfaction of the debt and the claim of every creditors of the company has been either discharged, determined, has been secured or his consent is obtained। समझ में आ रही है बात? अलाउ कर रहा हूं मैं, बट दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेट माने क्रेडिटर्स का कोई भी पैसा हो वो मैं पे कर दूंगा, या कर दिया, डिस्चार्ज, हैज बीन लिखा है, हैज बीन डिस्चार्ज, और डिटरमाइन ओके करके रखा है, या हैज बीन सिक्योर्ड, उसके सामने मैंने उसको सिक्योर्ड कर दिया है, ठीक है, और हिज कंसेंट हैज ऑब्टेन कि भाई मुझे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड दिस ट्रिब्यूनल ऑर्डर रिलेटेड टू दिस रिडक्शन इट हैज बीन इन कंफर्मिटी विद द एएस। एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड गेट द सर्टिफिकेट, प्लस लिखा है, ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर्स। तो आप बोलोगे सर कितनी सारी चीजें याद रखने की, इट इज इन दी सीक्वेंस वन प्रोसेस में, इसीलिए मैंने आपको ना ये चार्ट वाले फॉर्मेट में दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर कंफर्म करना है। ऑर्डर कंफर्म कौन करेगा? रिडक्शन का ट्रिब्यूनल। फिर ट्रिब्यूनल करेगा, ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से प्रोसेस करेगा, सबको पूछेगा, एंड इफ नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, आपको रीड भी ऐसे ही करना है घर पे, स्टोरी सॉर्ट ऑफ थिंग। इवन यू कैन प्रिपेयर अ चार्ट लाइक दिस, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां पे गया, ऑर्डर, नो ऑब्जेक्शन है, आगे बढ़ो, कंफर्म कौन करेगा? ठीक है, सो इफ यू लुक एट आई हैव गिवन द ग्रीन कलर, कंफर्म कर रहा है, बट ऐसे कंफर्म नहीं कर रहा हूं, आई एम गेटिंग दी कंडीशन, दैट इज कंडीशनल बेस्ड कंफर्मेशन, ठीक है। नाउ पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, किसका ऑर्डर है? ऑर्डर कौन पास कर रहा है? ट्रिब्यूनल पास कर रहा है। अभी जो सेक्शन देख रहे हो किसके रिलेटेड है? रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, याद रखना। यू वांट टू रिड्यूस योर शेयर कैपिटल, अब बर्डन कम करना चाहते। पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ कंफर्मेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल बाय द ट्रिब्यूनल shall be published by the company in such a manner as the tribunal may direct। बराबर। अभी ये ऑर्डर कौन देगा? ट्रिब्यूनल देगा। इट इज माई ड्यूटी टू मेंशन एवरी सेंटेंस, बट आपको सिंपल पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर किसको दिया होगा? कंपनी को। अभी नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ कंपनी टू सबमिट टू द आरओसी, बराबर है। सो certified copy of order of a tribunal to the registrar,
विद इन 30 days of the receipt of the copy of order from whom? From whom? कंपनी को ऑर्डर किसने दिया? ट्रिब्यूनल। तो जिस दिन ऑर्डर मिला उसके 30 दिन, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया उसके 30 दिन के अंदर आप उसको रजिस्ट्रार को मेंशन करोगे। A certified copy of a tribunal order and minutes containing the SR, special resolution, approved by the tribunal, showing the amount of a share capital, number of a shares into which it is to be divided, amount of each shares, etc. to the registrar on the receipt, shall register the same and issue a certificate to that effect. फिर आपको रजिस्टर एक और सर्टिफिकेट देगा कि ओके नाउ, क्योंकि आप कुछ भी कर लो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, ठीक है, सासू मां कुछ भी करके बताना पड़ेगा और वो इफेक्ट करेगा और वो उस हिसाब से फिर आपकी शेयर कैपिटल चेंज करेगा। मैंने आपको शायद हो तो बताया था एमसीए की पोर्टल पे जाके कि आपको कैसे चेक करना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल कितनी है। वो कहाँ पे दिखाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से, एमसीए की वेबसाइट से। तो वो वेबसाइट पे आएगा कौन? आरओसी। Okay, moving further. Exemption to the buyback. Nothing in this section shall apply to the buyback. ऐसे ऐसे में बहुत सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि बायबैक का खुद का अलग सेक्शन है, बराबर है। तो फिर वो रिडक्शन में हम लोग, रिडक्शन आप क्या सोचते हो कि मैं बायबैक के लिए जाऊं तो कंपनी ओपन मार्केट में से मैं अपने शेयर्स वापस ले रहा हूं, तो वापस ले रहा हूं उसका मतलब रिड्यूस ही हो रहा है, वो रिड्यूस ही हो रहा है, मेरे शेयर्स तो रिड्यूस ही हो रहे हैं, तो यू कैन कॉल इट एज अ रिडक्शन ऑल्सो। बट दिस 66 स्पेसिफिकली फॉर द रिडक्शन एंड बायबैक इज अ डिफरेंट थिंग। इसीलिए उसने 66 में ही स्पेसिफाई कर दिया कि बायबैक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिडक्शन। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द बायबैक बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन सेक्शन 68। उस हिसाब से ट्रीट करेंगे आप लोग, ठीक है। दोनों के पर्पज अलग अलग है ना, इसलिए रिडक्शन के पर्पज अलग अलग है और बायबैक के पर्पज अलग है। और मैंने आपको शायद समझाया था कि शायद वी डिस्कस इवन इन द, आई स्पोक इवन इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो दैट द मैक्सिमम बायबैक टुक प्लेस इन द पीरियड ऑफ द कोरोना। ये कोविड के पीरियड में बायबैक सबसे ज्यादा हुए थे। एक बार इफ यू सर्च इट ऑन अ गूगल यू मे फाइंड इट, व्हाट इज द रीजन फॉर द गोइंग फॉर द बायबैक। और तो बायबैक जो है ना, देखेंगे हम 67। बट बात निकली इसलिए आपको बता दूं कि बायबैक की जरूरत क्यों होती है, और बायबैक के लिए कंपनी के पास जो पैसा पड़ा होता है रिजर्व्स में, वो पैसों से कंपनी खुद के शेयर्स क्या करेगी? बायबैक करेगी। अभी लॉजिकली सोचो कि कोविड के केस में सब लोगों को पैसों की जरूरत है, बराबर है। अभी उस केस में पैसों की जरूरत थी तो आप मार्केट में बेचने वो जाएगा तो भी कोई मार्केट में लेगा नहीं। एंड शेयर होल्डर्स वांटेड अ एग्जिट कि सर मेरे शेयर्स है, सर मेरे शेयर्स के पैसे बन जाए तो अच्छा है। एंड एज यू हैव बीन taught that the objectives of the companies are for two: wealth maximization and profit maximization। तो मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब मैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डेट्रियोट करना चाहता नहीं हूं। तो एक काम करता हूं, उन लोगों को एग्जिट दे देता हूं, जिसको निकलना है वो निकल जाए। मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं कौन हूं? कंपनी। तो मेरे पास तो रिजर्व सरप्लस में पैसे पड़े, तो मैं वो पैसों से मैं इन लोगों को नो डिस्चार्ज कर दूंगा, एग्जिट दे दूंगा। तो अभी आप सोचो कि पर्पस बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है बात। सो वापस में व्हेन आई एक्सप्लेन दैट बायबैक अगेन, मैं आपको वापस समझाऊं कि वो उसको रिडक्शन में नहीं रखना है। रिडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। यू थॉट दैट कि सर दिस इज अननेसेसरी लायबिलिटी, व्हाई शुड आई क्रिएट, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पैसा लूंगा तो मुझे शेयरहोल्डर्स को वापस तो करना पड़ेगा। सो इट इज बेटर नाउ लेट मी रिड्यूस इट नाउ एज अ रिडक्शन। तो फिर 66 में चला गया। दोनों का पर्पज अलग है इसलिए। नो लायबिलिटी ऑफ अ member whether in a past or a present shall be liable to pay the amount of a call or contribution maximum up to the difference between amount deemed to have been paid on his shares and the nominal value of the shares reduced। इसमें वैसे कोई नॉर्मली लायबिलिटी रहती नहीं है। शायद आपने स्टार्टिंग में देखा हो, आपके पास मटेरियल था, ऊपर लिखा हुआ था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। किसके लिए था? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं है,
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो उन लोगों की जो लायबिलिटी रहती है वो कितनी होती है? द अमाउंट विच इज पेड ऑन शेयर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो उसमें तो कोई लायबिलिटी रहती नहीं। ऑब्जेक्शन बाय द क्रेडिटर, अभी वो वापस वो वाला पार्ट आया कि भाई ट्रिब्यूनल हैज पास द ऑर्डर and make a note. I'm sorry, before passing the order he send a notice to the central government, to the creditors, to the SEBI कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओ। now if the reduction of the share capital took place and where the creditor is entitled to object a reduction of share capital but his name and his interest not entered onto the list of the creditors either because of his ignorance of the proceedings or nature of his interest, date or claim, then in the respect of interest, company commits a default within a meaning of section 6 of the IBC. तो अभी IBC आप पढ़े ना हो, इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड, ठीक है? उसमें who can make an application for the IBC. So जब मैं next time आऊं तो I will explain the 5 different meanings. I will explain what is bankruptcy, what is insolvency, what is liquidation, what is dissolution, and what is winding up. सब चीजें कैसी एक साथ में दिखेगी आपको? सर ये सब चीजें तो एक ही नहीं है। फिर से बोलू, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप। सो द थिंग्स व्हेन यू सी, तो सर ये तो सब चीजें सेम दिख रही है, बट दिस इज डिफरेंट। आई विल एक्सप्लेन। You want to see now? Okay, but this is not a part of a syllabus. This is just for the understanding. So let me share one more new screen to you. Just a minute. Huh? Just a minute. Okay, let me share the screen. Let us have the conceptual understanding so far as liquidation, insolvency, bankruptcy, liquidation, winding up and dissolution. इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना so that your concepts, it gets clear. So whenever you are, speaking about the insolvency, means you are talking about specifically for this segment only. If we talk about liquidation, तो हम लोग वही चीज बोल रहे हैं। बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है वो थोड़ा अभी ध्यान से समझ लेना। Now the first one is we are going to see the difference with insolvency. So the insolvency defined as a financial condition or the state, here they have used the word state, experienced when a legal entity
or a person's liability, जिसको हम लोग बोलते हैं debt, is greater than their assets, which is normally known as balance sheet insolvency. Or when a legal entity or a person can no longer meet their debt obligation on a time, that is called as a cash flow inflow. माने insolvency है, उसका मतलब we are facing a liquidity crunch ऑन बैलेंस शीट साइड, तो असेट्स के सेगमेंट से कि भाई लायबिलिटी ज्यादा है और असेट्स कम है. कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर अवर कैश इज नॉट दैट मच इनफ टू रीपे द ऑब्लिगेशंस. ठीक है. अपॉन बिकमिंग द इंसॉल्वेंट, भी ध्यान से सुनना, अपॉन बिकमिंग द इंसॉल्वेंट इमीडिएट एक्शन मस्ट बी टेकन टू रेक्टिफाई द सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अवॉइड द पॉसिबल बैंक्रप्सी. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, उसका मतलब इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, इट इज अ फेज वेयर द टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, मींस इट गिव्स अ रेड सिग्नल कि भाई देखो प्रॉब्लम है, एक्शन लेने की जरूरत है. अगर वो एक्शन सक्सेसफुल हो गया तो आप बैंक्रप्सी से बच जाओगे. समझ में आ रही है बात? So the insolvency is a state where the two options are available. एक, अगर इंसॉल्वेंसी सक्सेसफुल हो गई माने प्रोसेस लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा. एक्शन सक्सेसफुल हो गया तो आप रिवाइव हो जाओगे, और फेल हुआ तो बैंक्रप्सी में चले जाओगे. खूब यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी दोनों सेम नहीं है. तो ये एक इंसॉल्वेंसी स्टेट अभी स्टार्ट हो रहा है. इन शॉर्ट, it is a state of affairs from which an entity may either emerge or a cease. माने बच जाएगा या तो गया. If the insolvency is a capable of successful, entity is not declared bankrupt. मैं अभी जो भी समझा रहा हूं, it is not a part of your syllabus. This is just a conceptual understanding. तो इंसॉल्वेंसी अगर सक्सेसफुल हो जाती है, इंसॉल्वेंसी माने स्टेप्स टेकन एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, इफ इट गेट सक्सेसफुल देन आपकी कंपनी रिवाइव हो जाएगी. इसीलिए कंपनी ने आईबीसी एक्ट बनाया है कि भाई बचने से, डूबने से बचाया जाए. बराबर. पहले तो सीधा क्या था, नहीं हुआ लिक्विडेशन. वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू रिवाइव द कंपनी. ठीक है. और पहले कैसा था कि द पावर्स गिवन विद द डेटर्स, अभी नाउ द पावर्स लाइज विद द क्रेडिटर्स. क्योंकि पैसे किसके, आपकी कंपनी डूब रही है, उसमें पैसे किसके, क्रेडिटर्स के. द क्रेडिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल. आपने किसी के पास से गुड्स लिया है, वो सप्लायर, वो छोटा सा क्रेडिटर है. बट बैंक के पास से लोन लिए, वो भी तो क्रेडिटर ही है. यस और नो? तो वो पावर्स किसको दिए जाने चाहिए, क्रेडिटर्स. तो आईबीसी हैज गिवन अ पावर टू द क्रेडिटर्स कैन मेक एन एप्लीकेशन. तो सेक्शन 6 जो अभी बोल रहा था ना, अभी आगे हमने देखा वो. ठीक है. तो क्रेडिटर्स का नाम नहीं आया, तो क्रेडिटर्स मेक एन एप्लीकेशन टू आईबीसी. आईबीसी के अंडर वो एप्लीकेशन कर सकता है, कंपनीज एक्ट में नहीं. कोई बात नहीं, वो वहां पे भूल गया, ड्यू टू हिज नेचर ऑफ इंटरेस्ट वो भूल गया. बराबर है. तो फिर वो आईबीसी में कर सकता है. नाउ होप इंसॉल्वेंसी इज क्लियर. गर्मी नहीं लग रही है? पास करूं? ही नहीं रहा. लो, ऑटो है. चलो बैंक्रप्सी पे आते. बैंक्रप्सी is defined as a successful legal procedure that resulted from. उसका मतलब इंसॉल्वेंसी का जो स्टेप्स था वो सक्सेसफुल रहा नहीं, तो अब कहां पे कन्वर्ट हुए, बैंक्रप्सी में आए. सो इट इज रिजल्टेड फ्रॉम एन एप्लीकेशन टू द रिलेवेंट कोर्ट. हम लोग सीधा एप्लीकेशन करेंगे, खुद कंपनी करेगी, बाय लीगल एंटिटी और अ पर्सन इन ऑर्डर टू हैव देमसेल्व्स डिक्लेयर एज अ बैंक्रप्ट, और एन एप्लीकेशन टू द रिलेवेंट कोर्ट बाय अ क्रेडिटर ऑफ अ लीगल एंटिटी और अ पर्सन कि भाई इसको बैंक्रप्ट डिक्लेयर करो. और स्पेशल रिजोल्यूशन विद द लीगल एंटिटी फ्लाइज विद द आरओसी इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड बैंक्रप्ट. उसका मतलब बैंक्रप्सी का स्टेट समझ में आ गया. इंसॉल्वेंसी अनसक्सेसफुल, देन इट बिकम्स. सो अभी इसको ध्यान से देखो. इंसॉल्वेंसी लीड्स टू, इफ
insolvency gets failed. Steps taken at the time of insolvency gets failed. So insolvency in this code regarded as a state where assets are insufficient to meet the, if untreated, the insolvency would lead to किसके लिए, और लिक्विडेशन फॉर द, तो अभी पिक्चर में इंट्रोड्यूस क्या हुआ लिक्विडेशन, तो नॉन कॉर्पोरेट का मतलब पर्सन, कॉर्पोरेट माने कंपनी और नॉन कॉर्पोरेट माने अदर देन कंपनी, तो कंपनी के अलावा जितने भी लोग होंगे और ये फेज में फंस गए तो आप उसको बोलोगे बैंकरप्सी. यू अंडरस्टैंड? और कंपनी फंसी तो लिक्विडेशन. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. इसीलिए आप देखना कोई भी बंदा होगा ना, बंदा माने कोई भी पर्सन है, तो पर्सन माने नॉन कॉर्पोरेट हुआ, इसके लिए कौन सा, सर ये बैंकरप्ट हो गया, ये बैंकरप्ट हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? इट्स अ नॉन कॉर्पोरेट. बायजूस में बैंकरप्सी वर्ड यूज हुआ है, बायजू लिमिटेड है, हाँ माने नॉन कॉर्पोरेट हुई, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज है, बैंकरप्सी. अभी जो कंपनी है उसके लिए फिर कौन सा वर्ड यूज करोगे, लिक्विडेशन. नाउ इंसॉल्वेंसी क्लियर हुआ. बैंकरप्सी में से ही एक और वर्ड अलग हुआ है लिक्विडेशन. उसका मतलब इंसॉल्वेंसी में से ही दो वर्ड अलग हुए. उसको मैं बोलूं बैंकरप्ट हुआ, उसका मतलब नॉन कॉर्पोरेट, और लिक्विडेशन माने जो सही में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं कब वर्ड बोलूं, एंड पीपल आर फायरिंग बुलेट्स एंड यूज द वर्ड इंटरचेंजेबली. लिक्विडेशन बोल देते हैं, ठीक है, बट बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू शुड नो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे. सो अगेन थोड़ा आगे बढ़ाता हूं. अ स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी कैन लीड टू, but the condition may be able to be may also be temporary or flexible without legal. Hence, it is evident that the insolvency is a state and the bankruptcy is a conclusion. So liquidation is also a conclusion. ठीक है? So there are two. In fact, आपने मूवी देखा होगा बाहुबली, उसमें था द बिगिनिंग और दूसरा था वो कंक्लूजन. बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बराबर, वो था बिगिन, वहां पे क्वेश्चन मार्क था, तो उसके लिए कंक्लूजन एक और बनाया नया. अभी बाहुबली 3 आएगा, क्योंकि पिक्चर का एंडिंग ही क्या था, कंक्लूजन, फिनिश. ठीक है. सो इट इज एविडेंट दैट द इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट एंड द बैंक्रप्सी इज अ कंक्लूजन. The bankrupt would be a conclusive insolvent, whereas all insolvencies will not lead to bankruptcy. All insolvencies will not lead to, if the insolvency converts or if it gets successful, then the company will be revived. पर वो bankruptcy में जाएगी नहीं. So typically insolvency situation have a two option. पहला ऑप्शन resolution and रिकवरी. सर बचा लो उसको, बच गया तो बच जाएगा, रिकवर कर लो, रिवाइव. और अनदर, कंपनी होगी तो लिक्विडेशन, नॉन कंपनी होगी तो बैंक्रप्सी. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लिक्विडेशन रिलेशनशिप, अभी ध्यान से रखना. लिक्विडेशन इज द वाइंडिंग अप. तो अभी वाइंडिंग अप वाला पार्ट आया, अभी आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो. सो लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन सब अलग अलग है. नाउ लिक्विडेशन वर्ड बोलू, उसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, कॉर्पोरेट्स, कंपनी, बराबर. नाउ द लिक्विडेशन इज अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी. देयर आर मेनी एंटिटीज दैट कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स दैट विल लीड टू लिक्विडेशन. रेगुलेटरी बॉडी, डायरेक्टर्स खुद सामने से जाके लिक्विडेशन में अप्लाई कर सकते हैं. अब फिर से मैं वापस यही स्टेटमेंट रखा है, इंसॉल्वेंसी लीड टू बैंक्रप्सी इन केस ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड लिक्विडेशन इन केस ऑफ. अभी आता हूं वाइंडिंग अप पे. देखो लिक्विडेशन के डेफिनेशन कहां से आई, लिक्विडेशन इज अ
वाइंडिंग अप है ना, ऊपर था ना। लिक्विडेशन इज अ वाइंडिंग अप। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सर वाइंडिंग अप में मतलब क्या होता है। वाइंडिंग अप इज डिफाइंड एज अ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इन द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड, माने वो सेम ही है। इट कुड बी अ कंपल्सरी वाइंडिंग अप एज एनफोर्स्ड बाय द क्रेडिटर्स और अ वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। सो द वाइंडिंग अप फिर उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। It has a two-step process. First, insolvency resolution process take place and then liquidation of the company occurs. While winding up the company is taking place, the corporate entity still exists. However, after the dissolution, the existence of the corporate entity put to end. तो उसका मतलब क्या होगा? Liquidation is a winding up of a company और winding up एक प्रोसेस, कंपनी को वाइंड अप करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी और प्रोसेस जैसे खत्म होती है तो एक ऑर्डर निकलेगा जिसको बोलोगे डिसोल्यूशन ऑर्डर। तो कंपनी क्या हो गई? डिसॉल्व। तो अभी देखते हैं। A winding up petition can be submitted by the company itself or by the contributors or by the registrar. A company may still be running its business during the procedure for the winding up the company in India if it instill that it will be beneficial for the winding up process. However, after dissolution the company ceases to exist anymore to run the बिजनेस, बट वो प्रोसेस के दौरान वो कंटिन्यूटी में रहेगा। नाउ कमिंग टू द डिसोल्यूशन पार्ट। द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी टुक प्लेस इन टू वेज। फर्स्ट, द कंपनी इज ट्रांसफर टू द अदर कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ एमालगमेशन। Okay, in such case the transfer company will be dissolved by an order of a tribunal without being, कोई बात नहीं, चलो भाई उसको ट्रांसफर कर देते हैं। सेकंड सिनेरियो, कंपनी सेल अंडरगो द वाइंडिंग ऑफ द प्रोसेस। सर पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। नाउ डिसोल्यूशन कब आएगा? वाइंडिंग अप की प्रोसेस के बाद। सो द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज जज बाय द ट्रिब्यूनल एंड द प्रोसीजरल फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी विच इज प्योरली ऑन अ जुडिशियल फंक्शन and the liquidator who carries off and administer the winding up process. The dissolution of the company is recorded by the registrar of a company। मुझे इससे इंपॉर्टेंट है, द डिसोल्यूशन इज अ नेसेसरी स्टेप फॉर फॉलोइंग द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। नहीं, लास्ट में पॉइंट तो समझा दू ना। सो I hope you understand the major difference between all these 5 words, starting with the insolvency, bankruptcy, liquidation। तो अगर उसको चार्ट फॉर्म में हम देखते हैं तो ये होगा इंसॉल्वेंसी, उसके दो हिस्से बना दे, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो और अनसक्सेसफुल होता है तो। ठीक है, सक्सेसफुल का मतलब होगा रिवाइव या रिजॉल्व, बचेगा वो। ठीक है, अनसक्सेसफुल होगा तो दो हिस्से बनेंगे। ठीक है, एक रहेगा बैंकरप्सी और एक रहेगा लिक्विडेशन। अभी बैंकरप्सी किसके लिए होगा? नॉन कॉर्पोरेट माने इंडिविजुअल एंटिटीज एंड एक्सेट्रा। और लिक्विडेशन किसके लिए होगा? अभी लिक्विडेशन होगा तो आपकी वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके भी कितने हिस्से? दो। ठीक है, ट्रांसफर करोगे माने एमालगमेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है, बट वाइंड अप पूरा आप सीधा कर दोगे तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर इश्यू करोगे एंड दैट ऑर्डर इज नोन एज डिसॉल्व and this order is nothing but the dissolution order। तो in short, insolvency
it is considered as a state and bankruptcy and the liquidation is a conclusion. पांचों वर्ड्स क्लियर हो गए? लेक्चर फाइनल में केम they have the entire act IBC. चलो आगे बढ़ते. See, this is called investment. It is investment of a time, not the wasting of a time. ये समझना जरूरी है. चलो, तो then in respect of his interest, company commits a default within the meaning of section 6 of the IBC insolvency में. Remedy available to such unpaid creditors. क्योंकि एक तो creditors को notice मिली थी, but उसने because of some unavoidable circumstances वो वहां पे apply करना भूल गया, objection करना भूल गया. बराबर है. Now, in that case, the first, if the company is running its operation, every person, अभी focus करना, मैंने word लिखा है was. Every person who was a member of a company on the date of the registration of order of reduction by the registrar, इसका मतलब past members की बात हो रही है जिस दिन order issue किया वहां पे, shall be liable to contribute to the payment of such date or a claim, but not more than the amount which he would have been liable to contribute. और ये लॉजिकल है ना यार, क्योंकि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? लिमिटेड. अगर वो गारंटी में जाता तो बात अलग है. So if the company has commenced the winding up on the day immediately before the said date. Now the first one is running the operation. Running the operation का मतलब वो कंटिन्यूटी में है. Now if the company is wound up, उसका मतलब डिसोल्यूशन ऑर्डर फिक्स है, कंक्लूजन फिक्स है, then the tribunal on the application of such creditor and the proof of his ignorance as aforesaid, it did things fit settle the list of a person so liable to contribute, make and enforce the calls and orders on the contributors settled on the list as if they were ordinary contributors in a winding up, और ये जो भी पैसे क्रेडिटर्स के है उसको पे करेंगे, सेटल करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स क्लेम क्यों कर रहा है? उसके पैसे मिले नहीं है, तो सर उसको पैसे देने पड़ेंगे. Now, no effects on the rights of contributors. You need not to go through it. You directly go to 447. Liability of officers. The officer of the company shall be liable for the punishment under section 447. I hope you know the penalty provisions of the 447. ठीक है, updated one, updated, पुराना वाला नहीं. If he knowingly conceals the name of any creditors entitled or object to reduction or abates, or knowingly misrepresents. See, there is one word abet. Abet का मतलब होता है help करना, but to encourage or to incite the another to commit a crime. ठीक है, अब you are inducing to do a illegal work. So this is the end of section 66. 66 क्या था? Reduction of the share capital. तो यहाँ पे हमारा 66 कंप्लीट हुआ. Now moving towards the one of the most important section 67, buyback of shares. चलो मैं समझा देता हूं फटाफट. In the case of the buyback of shares, कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस? फटाफट पहले बोलो. बायबैक कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस? पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, क्योंकि खुद के शेयर्स में बाई कर रहा हूं, शेयर्स ले रहा हूं और उसके सामने पैसे दे रहा हूं. उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, इट प्रोवाइड्स एग्जिट मैकेनिज्म टू शेयर होल्डर. लेट अस टेक एन एग्जांपल. ध्यान से सुनना. आप लोगों ने XYZ कंपनी के शेयर परचेज किए थे 50 रुपए, बराबर. अभी उसकी प्राइस चल रही है 30 रुपए. अभी उसकी प्राइस चल रही है, कब से उसकी प्राइस 30 रुपए अभी चल रही है. You thought that is if I am a company, तो अब मेरे जो शेयर होल्डर्स है उसकी वेल्थ डेट्रियोरेट हो रही है. ठीक है, तो फिर मैं एक काम करूंगा कि भाई आई एम द कंपनी हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन.
तो एटलीस्ट मुझे मैक्सिमाइज नहीं कर सकता तो मैं डेट्रिएट तो ना होने दूं। तो मैं आई एम गिविंग द एग्जिट मैकेनिज्म टू द शेयर होल्डर। मैं मेरी कंपनी के शेयर्स बायबैक कर रहा हूं 40 रुपए से। मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है? 30। मैं बायबैक कर रहा हूं 40 रुपए से। वुड यू लाइक टू गिव योर शेयर्स टू मी? यस और नो? आप मुझे बेचना चाहोगे? चॉइस इज योर। मार्केट में कितने रुपए चल रहे हैं? मैं आपको कितना दे रहा हूं? 40 रुपए दे रहा हूं। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरी कंपनी मेरे बारे में थोड़ा सोच रही है। नाउ द यू कैन कोरिलेट दिस सिनेरियो विद द कोविड-19। यू नीड अ मनी, ठीक है, और मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व सरप्लस में पैसा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एग्जिट मैकेनिज्म। चलो दूसरी चीज, लेट अस फोकस ऑन, क्या मैं बायबैक करूंगा तो आरओई बढ़ेगा कि नहीं? कंपनी की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरओई? हाँ, फॉर्मूला क्या है? यार वो बहुत बहुत सोचते हो। ये जो ओ है ना, ओ ये लाइन है। ओ के आगे क्या है? आर। आर माने क्या? तो ऊपर। और आर ओ के पीछे क्या है? इक्विटी। दिस इज द फॉर्मूला, है ना? अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट। रिटर्न में तो प्रॉफिट मिलता है, पेट। और नीचे क्या है? इक्विटी इनटू। क्लियर? अच्छा, अभी जरा सोचो, मैंने बायबैक किया, मैं बायबैक करूंगा तो मुझे पैसा तो यूज करना पड़ेगा आप लोगों को देने के लिए। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? रिजर्व सरप्लस। कैन वी से रिजर्व सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी? हाँ, है ना? इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड मैं यूज कर रहा हूं। तो मेरी इक्विटी क्या होगी? इक्विटी कम होगी तो आरओई क्या होगा? इज इट क्लियर? अच्छा, तो बायबैक का पहला एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स एग्जिट मैकेनिज्म टू द शेयर होल्डर। दूसरा, इंक्रीज द आरओई। आरओआई बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि नहीं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरओआई? किससे सोच रहे हो यार? ऊपर नीचे, इससे इन्वेस्टमेंट, रिटर्न किस में मिलेगा? इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है तो आप ईबीआईटी लिखो, प्रॉफिट ही है ये। नीचे इन्वेस्टमेंट माने कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माने इक्विटी शेयर कैपिटल, माने इक्विटी प्लस डेट। हाँ, तो इक्विटी में रिजर्व सरप्लस इंक्लूड होगा, तो ये कम होगा, आरओआई बढ़ेगा। क्लियर? क्या बायबैक से ईपीएस बढ़ता है? अर्निंग पर शेयर बढ़ता है? कैसे? अरे यार, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईपीएस? पैट। लेट अस एज्यूम देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो और फॉर्मूला में डिवाइड बाय नंबर ऑफ, नहीं, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि अर्निंग पर शेयर है। चलो, मैं शेयर्स बायबैक कर लू तो मान लो कि पहले बिफोर बायबैक मेरा पैट था 200 रुपए और नंबर ऑफ शेयर्स थे 100, तो मेरा ईपीएस कितना आया? 2। लेट अस एज्यूम कि मैं 50 शेयर्स बायबैक कर लेता हूं। कितने? 50 शेयर्स। तो 100 में से 50 बायबैक कर लू, मैंने वापस खींच लू, तो अभी अभी शेयर्स कितने बचेंगे? 50, क्योंकि 50 कैंसिल कर दिया बायबैक करके। हाँ, तो अभी ईपीएस कितना होगा? ईपीएस बढ़ा कि कम हुआ? कंपनी, एक तीर से कितने निशान हुए पता चला? एक तो कस्टमर माने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता, सर हम तो फंस गए थे, मैंने एग्जिट दी। दूसरा, अभी बीइंग इन्वेस्टर सेकंड टाइम आप उसी कंपनी का शेयर लोगे। आप लोगे क्यों?
कि सर कुछ भी ऐसा होगा ना तो कंपनी विल गो फॉर बायबैक, तो मैं बाहर तो आ जाऊंगा. सो इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ अ इन्वेस्टर. द सेकंड, विल इट इंक्रीज द आरओई, आरओआई, ईपीएस. तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्ट करेगा. यस और नो? क्योंकि बीइंग इन्वेस्टर सिंपली आपको कुछ नहीं पता है, आप सोचोगे कि कंपनी का आरओआई है कितना अच्छा है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है. ये पी रेशियो पता है? प्राइस टू अर्निंग. वेरी सिंपल. ये जो है वो ये लाइन, इसके आगे क्या है? पी. और इसके नीचे क्या है? दैट इज अ फॉर्मूला. प्राइस, कौन सी प्राइस? मार्केट प्राइस पर शेयर. ई माने क्या? अर्निंग पर शेयर. पाछू पीएस पीएस उड़ाई नहीं देऊ. अभी अभी आप जरा लॉजिकली सोचो. हेलो, ये ईपीएस है. अभी मैं ईपीएस को पी के साथ मल्टीप्लाइड करूं तो क्या मिलेगा? एमपीएस, जिसको आप लोग मार्केट प्राइस बोलते हो. बराबर. आपका ईपीएस बढ़ेगा, बायबैक से आपका ईपीएस बढ़ेगा, तो ये मल्टीप्लाइड होगा तो एमपीएस भी. और एमपीएस का मतलब क्या? वेल्थ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो बुक में लिखा है, सब कुछ लिखा है, बट आपको समझना है कि क्यों, व्हाई. सो दैट्स व्हाई वी डिस्कस के बायबैक के इतने सारे फायदे है, और कंपनी अपना काम भी कर लेती है. रिजर्व सरप्लस में जो ज्यादा पैसा रखने का नहीं. सो व्हेन यू एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, मेक श्योर दैट दैट शुड नॉट बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द रिजर्व्स इन द कंपनी, क्योंकि वो हार्डकोर पैसा पड़ा हुआ है. जिस कंपनी में रिजर्व सरप्लस ज्यादा होते हैं ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बैंकरप्सी, लिक्विडेशन हो सकता है. बराबर. घपले होने के चांसेस है. चलो आते हैं बायबैक पे. 67 रिस्ट. अभी बायबैक क्लियर हो गया? बायबैक कौन से शेयर्स का होगा? इक्विटी शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स का. बायबैक कौन सा होगा, किसके शेयर्स का होगा? है? बायबैक इक्विटी शेयर का होगा. हाँ. तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है. रेफरेंस सोर्स का रिडम्पशन होगा. याद आया सेक्शन? द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. आउट ऑफ द प्रॉफिट and out of the fresh issue. If it is out of the profit, then the nominal value transfer to CRR. If it is out of the fresh issue, you need not to transfer to CRR. अभी देखते हैं बायबैक में क्या है. Now, restrictions on a purchase by a company or giving of a loans by it for the purchase of its shares. Own shares जिसको आप लोग बायबैक बोलोगे. 67, the company limited by shares or a company by guarantee that is having a share capital shall not buy its own share unless the consequent reduction of share capital is affected. वो अलग है. बायबैक बायबैक के हिसाब से होगा, रिडक्शन रिडक्शन के हिसाब से होगा. Restrictions on giving a loan, guarantee or provision of a security. No public company shall give, whether D and I का मतलब whether directly और इनडायरेक्टली. लिख लेना, फिर आप मुझे पूछोगे कि सर डी और आई का मतलब क्या. whether directly or indirectly, and whether by means of loan, guarantee or the provision of the security, otherwise any financial assistance for the purpose of or in connection with the purchase or a subscription made by the person. सर इतना ज्यादा मत बोलो, मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग अ लोन, गारंटी और प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी. Exception.
non applicability. Nothing in section 67(2) shall apply to lending of a money by the banking company in the ordinary course of business. पैसा अगर खुद बैंकिंग कंपनी का बिजनेस चला रहा हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस है, तो फिर वो मेरे लिए ये केस में कवर होगा. लोन देना ही मेरा बिजनेस है. ठीक है. दिस इज लाइक ज्वेलरी का बिजनेस है, तो ज्वेलरी के शॉप पे जो ज्वेलरी पड़ी है वो असेट्स है, स्टॉक है. समझ में आ रही है बात? तो फिर वहां पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज दी असेट्स. सेम वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या बैंक है, उसका काम ही लोन देना है, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट एंड गिविंग और लैंडिंग अ मनी. तो फिर उनके लिए फिर ये चीज एप्लीकेबल होगी नहीं. कौन सी वाली? ये वाली, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ गिविंग अ लोन और गारंटी. सेकंड, the provision of the money for the purchase of fully paid up shares in the company or holding company by the trustees for or on behalf of the company's employee, that is employee share scheme through special resolution, जिसको आप लोग ESOP बोलते थे या ESPP, employee stock option plan, employee stock purchase plan. So simple cheese, not applicable in the case of ordinary course of business. In the case of share employee scheme, this is also not applicable in the case of lending a money by the company to its employee. अभी ध्यान से सुनना, डायरेक्टर नहीं, अदर देन डायरेक्टर्स और द की मैनेजरियल पर्सन, और सिंपल वर्ड लिखा है एम्प्लॉई. नॉट मोर देन अ 6 month सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉई इज एनेबल टू देम टू बाय और सब्सक्राइब फुल्ली पेड शेयर्स इन द कंपनी. माने ये रिस्ट्रिक्शंस एम्प्लॉई के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है. गिविंग अ लोन, गिविंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, दिस इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू 3 थिंग्स. ऑर्डिनरी बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है, ESOP में एप्लीकेबल नहीं है, और एम्प्लॉई के व्हेन यू आर लेंडिंग अ मनी, लेंडिंग अ मनी का मतलब गिविंग अ लोन, गिविंग अ लोन टू योर एम्प्लॉई, बट नॉट मोर देन 6 month salary. Redemption of the preferences permitted. Nothing in the section 67 shall affect the rights of the company to redeem any preference share. तो सर सेक्शन 67 जो है वो बिल्कुल क्लियर एक रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है कि बायबैक को अलग कर रहा है और दूसरे सेक्शंस को लाइक 66 रिडक्शन को अलग कर दिया, रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स को अलग कर दिया कि सर ये दीज आर द थिंग्स व्हिच इज टोटली डिफरेंट. Now come to directly 68, one of the most important section, 68, 69 and 70. Sarai, ready? Power of a company to purchase its own share. तो बायबैक के रिलेटेड टोटल 3 सेक्शंस आपको याद रखने हैं, 68, 69 and 70. Let us start with the 68. Sources of the buyback. You know that there is a different meaning. Sources अलग होते हैं, methods अलग होते हैं. अगर शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं तो 2 ऐसी चीजें पूछ सकते हैं. डिफरेंस, which are the sources of the buyback and methods of the buyback. सोर्सेस का मतलब है पैसा कहां से अरेंज करोगे, पर मेथड्स का मतलब है शेयर्स कहां से अरेंज करोगे. बायबैक करने के लिए शेयर्स कहां से अरेंज करोगे. ठीक है. सोर्सेस का मतलब क्या, फंड कहां से अरेंज करोगे, और मेथड्स ऑफ द बायबैक का मतलब मुझे शेयर्स बायबैक करने हैं तो मैं बायबैक कहां से करूंगा, कौन सी मेथड से करूं. फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास से करूं, ओपन मार्केट में जाऊं, या मेरी कंपनी के जो एम्प्लॉय के पास मेरी कंपनी के शेयर्स है तो मैं उनको ऑफर करूं, मुझे दे दो ऐसा. ठीक है. सो पहला, सोर्सेज ऑफ द बायबैक ऑफ द फ्री रिजर्व्स. नॉर्मली मैंने बताया था 2 फ्री रिजर्व्स है मेनली, जनरल रिजर्व एंड PNL. सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन नंबर 52. याद आया ना, व्हेन द इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, और प्रोसीड्स माने ये फ्रेश इश्यू. वेरी क्लियर. तो हम एक काम करते हैं, ये 2 लोगों को साथ में रखने का, ये पहला सोर्स और ये दूसरा सोर्स. पहले सोर्स में क्या, आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड द सेकंड वन इज आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू. व्हाई वी हैव बाइफरकेटेड, क्योंकि ये फर्स्ट वाले केस में
आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बायबैक सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर पहले सोर्सेस में से है तो। अगर ये सेकंड सोर्सेस में है तो यू नीड नॉट टू ट्रांसफर टू सीआरआर। अभी यहां से मैं बोल देता हूं बिकॉज जैसे हम आगे प्रोविजन देखते जाएंगे वैसे वो कवर होता जाएगा। क्लियर? तो सोर्सेज ऑफ बायबैक क्लियर। कितने सोर्सेज हुए? दो। भले यहां पे तीन लिखे, कितने? दो। पहला फ्री रिजर्व, उसी में दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? एंड अनदर इज फ्रेश इश्यू। Explanation 168. Specified securities includes ESOP and other securities as may be notified by the central government. Note, buyback of the shares or other specified securities cannot be made out of the proceeds of the earlier issued of the shares or other specified security of a same kind. चलेगा? For your reference, for your understanding, यहाँ पे हमने source complete किया. So if you will be asked very small question for the 2 marks, which are the sources of buyback? Clear होगा? Now, conditions for the buyback, there is a possibilities that you will be asked for the 7 marks. Direct 7 marks questions, conditions for the buyback of shares. Chalo, ready? The first one, the first condition related to, it should be authorized by articles. It should be authorized by articles. Which resolution is to be passed? Special resolution. अब यहाँ पे ना दो चीज है. The special resolution has been passed at the general meeting authorizing the buyback, but the same is not required. उस केस में if the buyback is less than equal to, याद रखना, less than equal to 10% of the total paid up capital and free reserves, then the same has been authorized by the board resolution. तो ये केस में दो रिजोल्यूशन आएंगे, स्पेशल एंड बोर्ड. तो शायद आपको इसको ऐसे करके पूछ सकते हैं कि भाई बायबैक शुड बी authorized with the special resolution. Is there any exception? Yes. Basically, in order to go for the buyback, special resolution is required. But if, ध्यान से सुनना, if the buyback is less than equal to 10% of the paid up capital and free reserves, then it can be authorized by the board resolution. और आप लोगों को बोर्ड रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन में फर्क पता है. वो जनरल मीटिंग में है इसलिए शेयर होल्डर्स वोट करेंगे, और ये बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ. कॉन्सेप्ट क्लियर? लेस देन इक्वल टू माने 10% इंक्लूड है, बराबर. और किसका 10% प्लस फ्री रिजर्व, बराबर है. The amount involved in the buyback shall not be more than 25% of the aggregate of the paid up capital and free reserves of the company. And further, in case the buyback of equity shares, the maximum limit is 25% of the total paid up capital, equity capital in the financial years. उसका मतलब एक लाइन में बोला जाए तो buyback shall not exceed 25% of the paid up capital and free reserves. Clear? Next, after buyback, the ratio between debt should not be more than twice the paid up share capital and the free reserves of the company. उसका मतलब डेट इक्विटी रेशियो हुआ. तो डी पॉइंट में आप ऐसा लिख सकते हो, आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो shall not exceed 2:1. डेट इक्विटी रेशियो माने इक्विटी ₹1 होगी तो डेट ₹2, उससे ज्यादा नहीं. बट कब? आफ्टर बायबैक. उसका मतलब ज्यादा हुआ तो बायबैक इज नॉट परमिसिबल. तो देयर आर 3 टेस्ट, वो अकाउंटिंग में आता है. 3 टेस्ट फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स. शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एक रिसोर्स टेस्ट और एक डेट इक्विटी टेस्ट. चलो, पहली कंडीशन क्लियर. इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय AOA. Which resolutions to be passed? बोर्ड रिजोल्यूशन कब आएगा? If it is less than equal to किसका? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, दोनों को. बायबैक shall not exceed 25% of the paid up capital and free reserve. After buyback, debt equity ratio shall not exceed 2:1.
द शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप। देखो भाई, हर एक लाइन मत पढ़ना, इसीलिए मैंने बोल्ड लेटर करके दिए है, नहीं तो फिर पूरे लॉ में इतनी सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे। सिंपल जो लिखा है उसमें आप आपके हिसाब से लिख देना। अगर मान लो आपके शेयर्स लिस्टेड है, तो आपको किसका रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा? सेबी का। तो एक लाइन, इफ द शेयर्स आर लिस्टेड देन यू हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ अ सेबी। मैटर ओवर। No offer of a buyback shall be made within a 1 year reckoned from the date of a closure of a preceding offer of a buyback। कितने हैवी हैवी वर्ड्स है। तो सिंपल, एक बायबैक और दूसरे बायबैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? एक साल। वेरी क्लियर। सो देयर इज एटलीस्ट 1 year of a gap, या 1 year elapse, no, for the preceding buyback for the going for the another one. The free reserves includes the सिक्योरिटी प्रीमियम। ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने तो आपको बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व, बराबर है, बट ये सेक्शन में स्पेसिफाई करके दिया कि ये फ्री रिजर्व है, इसीलिए हमने दो सोर्सेस बना दिए, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? नाउ कंडीशंस क्लियर हो गई, बराबर है। चलो, कंडीशंस में एक्स्ट्रा और कोई चीज मत लिखना इसके अलावा। शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप, ऑथोराइज्ड बाय एओए। कौन सा रिजोल्यूशन? स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, बराबर है। बोर्ड रिजोल्यूशन कब आएगा वो क्लियर है। डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड 2:2, बट वो कैसा है? आफ्टर बायबैक। क्लियर? द ओवरऑल लिमिट 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, बराबर है। लिस्टेड कंपनी होगी तो दे विल हाउ टू फॉलो द सेबी रूल्स, और एक और दूसरे बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। नाउ इश्यू ऑफ अ नोटिस। The notice of meeting at which SR is proposed to be passed shall be accompanied by the explanatory statement। बार बार बोलता था पहले से, पहले लेक्चर से, जब भी SR जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, माने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्यों बायबैक करने जा रहे हैं, नेसेसिटी क्या है, कौन सी अमाउंट है, टाइम लिमिट क्या है, वो सब वहां पे आएगा। टाइम लिमिट टू कंप्लीट द बायबैक, तो ध्यान से सुनना, बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ 1 year or a 12 months from the date of passing the, or as the case may be, resolution passed by the board। याद आया? वो बोर्ड रिजोल्यूशन कब था? when the paid up capital less than equal to 10%। तो उस दिन से, यानी बोर्ड रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन से विद इन 12 months कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्रॉम वेयर सिक्योरिटीज आर टू बी परचेज, ये आया, ये मेथड्स है, मेथड्स ऑफ अ बायबैक, कि कहां से शेयर्स बायबैक करूं। तो पहले कहां पे जाऊंगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाऊंगा, और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फॉर एग्जांपल 2:1, जिन जिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास मेरे 2 शेयर्स होंगे उसमें से मैं एक बायबैक कर लूंगा, प्रोपोर्शनेट, बराबर। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा तो सबका चांस आएगा ही नहीं, ठीक है। और सेकंड, फ्रॉम द, सर मार्केट में चला जाता हूं, ऑफर रख देता हूं, और बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज टू द एम्प्लॉइज इन परस्यूइंग द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन, या तो स्वेट इक्विटी शेयर्स 54। कुछ याद है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द इक्विटी शेयर्स issued by to directors or employees। याद है ना? For the consideration other than cash or a discounted price for their intellectual property rights or the value addition। बिल्कुल सही है, अच्छा है, पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते रहिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, बोलो, जब भी मैं बायबैक के लिए जाऊं तो मुझे डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, आई एम सॉल्वेंट इनफ टू पे द अमाउंट टू माय शेयर होल्डर। सो द डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी फाइल बिफोर द रिजोल्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेड विद द रजिस्टर, ये बिफोर सबमिट करना है, बट ऑब्वियसली बिफोर ही करना पड़ेगा ना,
and also with the SEBI कब, if the company सॉल्वेंसी कौन से पीरियड में सबमिट करोगे, फॉर्म नंबर SH9. It has to be signed by at least 2 directors and one of them must be MD. आगे बढ़ते हैं. Extinguish of the security माने कैंसिल कर दूंगा. When the company buybacks its own share, it shall extinguish, physically destroy the shares or securities within a 7 days of the last day of the completion of the, जिस दिन बायबैक खत्म होता है उसके 7 दिन के अंदर फिजिकली शेयर्स में डिस्ट्रॉय कर दूंगा. इसीलिए मैंने बोला कि बिफोर बायबैक मेरे पास 100 शेयर्स थे, आफ्टर बायबैक मैंने बायबैक 50 शेयर्स कर लिए, तो दैट 50 शेयर्स हैज बीन फिजिकली एक्सटिंग्विश्ड. सो अभी मेरे पास कितने शेयर्स बचेंगे, 50. क्लियर. cooling period, the cooling period where the company completes a buyback of its shares or other specified securities shall not make a further issue of a same kind of a shares within a period of a 6 months. सेम काइंड ऑफ असेट्स वापस बायबैक के लिए नहीं जा सकते. हावेवर मैंने ब्रैकेट में भी ये ग्रीन कलर में लिखा है, हावेवर it may make a bonus issue and discharge its existing obligations such as conversion of a warrant, stock option scheme, sweat equity, conversion of the preference shares or the debenture into equity. वो कर सकते हैं, बट बायबैक के लिए नहीं. तो सेम काइंड वर्ड याद रखना. रजिस्टर ऑफ अ बायबैक कौन से फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, SH10 बराबर. SH9 में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, SH10 रजिस्टर. रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन SH11. रिटर्न किसको सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार को, बराबर. यू विल हैव टू सबमिट द रिटर्न टू द रजिस्ट्रार इन हाउ मेनी डेज, बायबैक खत्म होने के 30 दिन के. along with the return certificate in form number SH15 signed by the 2 directors, 15 signed by the 2 directors including MD for the buyback of made that you made the buyback of share in a compliance with the law. बराबर, ऐसा आप सबमिट करोगे. Penalty for the default. If company makes any default in complying with the provision of this section and any regulations made by SEBI, then company and every UID minimum कितनी पेनल्टी और मैक्सिमम 68. क्लियर. बायबैक ऑफ शेयर्स. अच्छा, कौन से सोर्सेस है फटाफट बताओ. ओके, कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और बाय एक्सेप्शन कौन सा, लेस देन इक्वल टू 10% होगा तो बोर्ड रिजोल्यूशन. Buyback shall be completed within 12 months from the date of passing a special resolution. Clear. After buyback debt equity ratio shall not exceed 2:1. बराबर ना. अच्छा, in how many days shares should be physically extinguished, 7 days. Solvency, declaration of solvency before submission करना पड़ेगा कि आफ्टर बायबैक, कौन से फॉर्म में, SH9 में. ठीक है. Buyback shall not exceed 25% of the paid up share capital and free reserve. नॉर्मली गैप कितने साल का रहता है. अच्छा, क्या कंपनी जो है वो माने एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, बायबैक का रिटर्न फाइल करने की जरूरत है. हाँ, कोई भी स्पेशल इवेंट होती है उसका रिटर्न ऑलवेज फाइल करना पड़ेगा. बराबर है. नाउ 69 नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आप समझ जाओगे. ट्रांसफर ऑफ अ सर्टेन सम्स टू CRR. बराबर. अच्छा, रिडम्पशन के कितने सोर्सेस बताए थे, 2 सोर्सेस में 2 सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन थे. एक था आउट ऑफ फ्री एंड सिक्योरिटी और दूसरा क्या, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू. तो CRR में अमाउंट ट्रांसफर होगी, यस. यहां पे CRR में अमाउंट ट्रांसफर होगी, नो, नहीं होगी. कट कर देता हूं. बराबर है. कितनी वैल्यू ट्रांसफर होगी,
nominal value of a buyback will transfer to CRR. ओके, ये चीज समझ गए? आओ देख लेते, जो लिखा है वही. When to transfer, if the buyback is out of, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, if the buyback is out of, या तो ट्रांसफर होगा. कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी? ऑफ अ बायबैक. सो परचेज माने नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ बायबैक, एंड इट शुड बी डिस्क्लोज इन अ बैलेंस शीट. सर ये सीआरआर की अमाउंट कहां पे यूज होगी? सीआरआर की अमाउंट कहां पे यूज होगी? आओ 52 क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम. इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? उसमें बी भी था, एक बी बोनस, और लास्ट वाला टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनसेस. वो तो बोनस पढ़ाया था ना, तो बोनस में भी बताया था कि सीआरआर सबसे पहले यूज करना. तो जिन लोगों ने अकाउंट में बोनस देखा है ना, उसने जर्नल एंट्री में सीआरआर यूज होता है. कैपिटल रिजर्व रिसीव्ड इन कैश. तो द सीआरआर may be applied in paying up unissued shares of a company. छोड़ दो ये इतना एक वर्ड याद रखना, to issue fully paid up bonus shares. Now coming to the 69, I think 69 is clear to you. Last section 70. Prohibition for the buyback in a certain cases. Section 70 subsection 1 states that no company shall, D and I का मतलब, purchase its own shares or securities through any subsidiary company, including its own subsidiary, or through any investment company, or if a default is made by a company in repayment of a deposits, redemption of a debenture, redemption of a preferences, payment of a dividend, repayment of any term loan or interest. तो ये सब प्रोहिबिटेड एरिया में कि ये लोग बायबैक नहीं कर सकते. उसका मतलब बायबैक करने से पहले ये चीज देख लो कि ऐसा हुआ तो नहीं है. ठीक है. वेयर द डिफॉल्ट इज रेमेड, माने डिफॉल्ट हुआ बट आपने उसको कवर कर लिया है, रेमेड कर लिया है, फॉर एंड अ पीरियड ऑफ 3 years हैज बीन elapsed, माने लैप्स हो गए, ओके कंप्लीट हो गया 3 साल, देन सच बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड. तो फिर आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा. तो बहुत सारे ऐसे कंपनी में ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि भाई चलो प्रोहिबिशन है, माने हमने डिफॉल्ट किया है बट हमें मौका मिलना चाहिए. तो वो डिफॉल्ट एक पहले आप क्लियर करो, उसके बाद कितना पीरियड का गैप रहेगा, देन यू कैन गो फॉर द बायबैक. Section 70 subsection 2 prohibit the company from directly or indirect to purchase its own shares if such company has not complied with the provision of 92 माने annual report, 123 declaration and payment of, 127 to distribute dividend, and 129 आपको याद रखना है, 92 123 127 120. अगर डिफॉल्ट होता है तो देयर इज अ प्रोहिबिशन. दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर. हमारा लेक्चर कब तक था? 145 था. I think section 70 is clear to you. 68 clear, 69 and 70. ना जो आगे કેમ? હા સારું સારું ચોક્કસ. હા. So okay fine, so we'll keep till 70. We'll see the 71 from, क्योंकि I think it is too long, so we'll keep that 71. And another material that is in the Q&A format,
it will be given to you in a day or 2 days. Maybe probably we'll be having a lecture on the Friday, Thursday, Friday. ये 2 दिन रहेगा.